Yes, good morning. We will just start in next 2 minutes. We will start today's live in next 2 minutes, right? So we will wait for 2 minutes for everyone to join, and after 2 minutes we will start. Okay, right. So by the time we'll have wishes. Good morning, Sejal ji. Good morning, Manish ji. Good morning, Nidhi ji. Good morning, Vishal ji. Good morning, Hustler Ajay ji. Anu ji, good morning. Rishabh ji, good morning. Amoria Amaka ji, good morning. Deepak ji, good morning. Mahesh ji, good morning. Shankar ji. Just why not to type your cities also, like you are from which city, like you are attending this Insta live from which city, right? Right. Good morning, Sai ji. Good morning, Sandeep Duke ji. Good morning, Avi ji. Okay, just anybody inform me out whether you are able to hear me out in a proper way or not. Yes, good morning, Ajit ji. Right. Good morning, Sandeep ji. Aurangabad, yes. Right. Fruity Patel ji. Good morning, Jalna. Mr. Shankar ji. Yes. Good morning, Ajay ji. Good morning, Anurag ji from Lucknow. Yes. Maurya Omika ji from Lucknow. Prem ji, correct. Richa ji, Komal ji, Roshan ji, yes, great. Good morning, Aarti ji from Yotmal, right? Good morning, Asad ji from Hyderabad. Good morning, Hustler ji. Hustler Sunil ji from Bandara, correct, right. So, Ajit ji from Sholapur, correct. So, let's today in this particular direct selling mantra tips, right, session today on Insta Live, I want to share 3 things out with each one of you. I have decided 3 topics that I will be sharing out with each one of you. मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ और सबसे पहला टॉपिक 3 बातें हैं, 3 लर्निंग है जो मैं आप सब लोगों को आज देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो मैंने पास, राइट। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को अब ध्यान से सुने, राइट, और मेरी बातों को अच्छे से समझें और ध्यान से सुने। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि what I have seen is that there are 3 kind of people like generally who get a presentation of direct selling business or generally they come into direct selling business, right? I will divide them into 3 categories, correct? The category number 1 is the people who get presentation of direct selling business or they come into direct selling business but they are not much ambitious, right? They are not having much ambition in the life, correct? So if I talk about this one particular category, the people who are not having much ambition, अगर ambition ही नहीं है तो obvious ही बात है कि फिर हम लोग बहुत बड़ा नहीं कर सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म में बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी बड़ा करने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म में बड़ा करने के लिए हमें एम्बिशन हमारा होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ एम्बिशंस हो, कुछ महत्वाकांक्षाएं हो, कि हमें अंदर से कुछ करके दिखाने की चाह, तो हमारे पास एक बर्निंग डिज़ायर हो। क्योंकि बोला जाता है कि कुछ चीज़ें आपको एक्सटर्नली मिल सकती हैं, जैसे कोई भी आकर आपको ट्रेनिंग दे सकता है, बिजनेस करने का टिप्स दे सकता है, सिखा सकता है, लेकिन जो बर्निंग डिज़ायर है और एम्बिशन है ये आपको कोई भी नहीं दे सकता है, राइट? तो अगर आपके पास बर्निंग डिज़ायर की कमी है, आपके पास एम्बिशन नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज आर नो मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इफ यू डोंट हैव एम्बिशन इन योर लाइफ, करेक्ट? इफ यू आर नॉट एम्बिशियस, अपॉर्चुनिटीज विल नो मोर बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं, राइट, अगर आपके पास एम्बिशन नहीं है, राइट। लेकिन चलो ये तो पहली कैटेगरी हो गई, वो लोग जिनके पास एम्बिशन नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी। अब सेकेंड कैटेगरी के बारे में बातचीत करते हैं। सेकेंड कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां पर लोगों के पास एम्बिशन तो होता है, दे आर एम्बिशियस, दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, दे आर एक्साइटेड, दे आर एनर्जेटिक, दे आर बर्निंग डिजायर, right? And they are excited, they, yes sir, I want to do something, and they are aggressive, right? From their body language, from their behavior, from their nature, they are very aggressive, right? They have ambitions, they want to do something. But what happen is, along with having ambition in this second category, listen me out very carefully, in this second category, along with having ambition, they have frog like attitude also, right?
That means they keep on jumping from one opportunity to another opportunity. Right? Correct? So what they do, today they are doing something, tomorrow they are doing something else, day after that they are doing something else. तो कुछ भी एक भी काम के ऊपर फोकस करके नहीं करते हैं. एम्बिशन है, कुछ बड़ा करना है, बहुत अच्छा करना है, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ बेहतरीन करना है, कुछ जबरदस्त करना है, लेकिन क्या है, हर 10 दिन के बाद उनका काम बदलता है. एवरी 10 days दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू. एवरी 10 days दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू. आज कुछ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, right? So they did it, they were excited. 10 days, for 10 days, 15 days, they were very excited about that particular objective, right? Because of their ambition, they became a part of it. Ki whenever you will become the part of any system, right, there will be challenges to develop you, to grow you, and to take the potential out of you, right? But what happens is, when these category of people, ambition but with frog like attitude. What is the category? Ambition but with frog like attitude. When they become a part of any system, they try it for 10 days, 15 days, 20 days. और जब उस system के what they do is, they jump at another system, right? Then now they are trying something new, right? First they were on YouTube, then they were doing something, then they were doing something, then they are doing something, then they are something. And you know, today in Instagram, you scroll down, आप Insta को scroll करोगे, हर एक 2-3 पोस्ट के पास there is something new waiting for you. But what happens is, the second category of the people, that is ambition with frog like attitude, इनका कुछ नहीं होता है. ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हर कुछ समय के बाद कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, राइट? और जब भी कुछ नया में ये अंदर तक जाते हैं, when they dive into that particular thing, उसके बाद जब challenges आते हैं, क्या होता है? they jump. तो अगर कोई भी पर्सन एम्बिशियस है, लेकिन मेढक की तरह अगर जंप करता रहेगा, तो वो कहीं पर भी डेवलप होने वाला नहीं है. वो किसी भी सिस्टम से बाहर निकल के नहीं आएगा. और यही चीजें कई समय तक चलती रहती हैं, और एक समय के बाद दे गो बैक टू ट्रेडिशनल लाइफ. दे स्टॉप ट्राइंग द अनकन्वेंशनल सिस्टम एंड दे गो बैक टू ट्रेडिशनल सिस्टम. जो हम सबको पता है क्या होते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, क्या ट्रेडिशनल ऑप्शंस होते हैं किसी भी एक पर्सन की लाइफ में, राइट? लेकिन जो लोग लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बनते हैं, या जिनको भी मैंने अपनी लाइफ में कामयाब, या मैंने जिनकी बुक्स पढ़ी हैं, जिनको मैंने कामयाब बनते हुए देखा है अपनी लाइफ में, जनरली मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व करी है, वो ये ऑब्जर्व करा है कि दे वर एम्बिशियस, यस आई एग्री, बट दे वर हैविंग लेजर लाइक फोकस. दे वर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क व्हेन दे वर गेटिंग रिजल्ट, एंड दे वर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क व्हेन दे वर नॉट गेटिंग रिजल्ट. दे वर इनटू दैट सिस्टम when they were doing very good in that system. They were into that system when they were not able to do very good. Correct? जब वो काम कर रहे थे, उनको रिजल्ट मिल रहे थे, तब भी वो सिस्टम में लगे हुए थे. जब वो काम कर रहे थे लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तब भी वो उस सिस्टम में थे. They were having ambition, but they were having laser like focus कि नहीं, I want to become successful in this particular system. I want to become successful in this particular system. Right? Correct? Right? When they were doing good, their family was supporting them, they were into that system. When their family was not agreeing with their thought process, right, and their family thought process and their thought process was not matching up, then they were also doing it. When their friends and relatives were supporting them, then they were working in the system. But when their friends and relatives were not supporting them or were not agreeing with their thought process, then also they were working into that system. Right? हम कहीं किसी भी फील्ड का एग्जांपल ले सकते हैं. पंकज त्रिपाठी जी का एग्जांपल ले लीजिए. एक्टिंग, राइट? एक्टिंग करा, पैसे नहीं मिल रहे थे तब भी एक्टिंग करा, पैसे मिल रहे हैं तब भी एक्टिंग किया, राइट? फैमिली का सपोर्ट नहीं था तब भी एक्टिंग करा, फैमिली का सपोर्ट आया तब भी एक्टिंग करा. 9 साल तक करियर में मूवीज नहीं मिली तब भी एक्टिंग करा, और जब मूवीज मिली, जब रोल्स मिले, तब भी एक्टिंग करा. आप किसी पॉलिटिशियन का एग्जांपल लो. You go out into any particular field, the people who have become something out of it, they were the people with ambition and they were the people with laser like focus. वो सिर्फ उन्होंने उस फील्ड में तब तक काम नहीं किया जब तक कि उनको रिजल्ट मिल रहे थे, राइट? उन्होंने तब तक काम किया, उन्होंने हर सिचुएशन में काम किया, रिजल्ट मिलने पर भी, ना मिलने पर भी, चीजें अच्छी चलने पर भी, चीजें अच्छी ना चलने पर भी. When things were going great, they were also a part of it. When things were not going great, then also they were doing it out. Correct? Because
हर समय चीजें जरूरी नहीं है. एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी दैट थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू यू. थिंग्स विल गो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, राइट. काम के अकॉर्डिंग चीजें जाएंगी, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें जाएंगी, आपके चैलेंजेस कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे. तो आखिरकार जो लोग बचते हैं और जो लोग बड़ा करते हैं, वो सिर्फ वो लोग नहीं है जो एम्बिशियस हैं, वो सिर्फ वो लोग नहीं है जो एनर्जेटिक हैं, वो सिर्फ वो लोग नहीं है जो बर्निंग डिजायर हैं, वो सिर्फ वो लोग नहीं है जो एग्रेसिव हैं. वो लोग हैं जिनके पास एनर्जी, एग्रेशन, बर्निंग डिजायर, एम्बिशन, इसके साथ साथ एक काम के ऊपर लेजर लाइक फोकस करने की एबिलिटी है. लेजर लाइक फोकस करने की एबिलिटी है, राइट. एक जगह पर टिककर लेजर लाइक फोकस करने की एबिलिटी है. क्योंकि अगर मेढक की तरह हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह हम जंप करते रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम कभी भी किसी भी एक जगह रहकर हम किसी भी चीज के डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे. किसी भी चीज की डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे. और होगा क्या? हमारे पास जैसे हम लोग होते हैं ना, कि हम लोग मे बी हम एक ऐसे पर्सन बन जाएंगे जिसने बहुत कुछ ट्राई किया है लेकिन कहीं पर भी कुछ बना नहीं. और अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मेरे लाइफ का जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मेरा जो पर्सनल थॉट प्रोसेस था, रेदर देन ट्राइंग मेनी थिंग्स, बिकम अ मास्टर ऑफ वन थिंग. रेदर देन ट्राइंग मेनी थिंग्स, बिकम अ मास्टर ऑफ one thing. Because society and people don't value the people who have tried many things. Society and people value those people who have focused on one thing and they have done something really great out of that one thing. They have really done something great out of that one thing. And that is what is my personal suggestion to you. I started direct selling, right? Initially I got good result. I was doing it. There came a time where I was not getting good result. I did it. There was a time when my friends were not supporting, were not agreeing with my thought process. I did it. There came a time when my process, I did it. Right? Correct? Right? Maybe if because of internet connection, my video is not, will get blur sometime, no problem, you can hear up my voice. करेक्ट. जब मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया तब भी मैंने काम किया, जब फैमिली ने सपोर्ट किया तब तो करना ही था. राइट? राइट. तो पॉइंट इज, डोंट बी अ पर्सन who is having ambition and frog like attitude. करेक्ट. मेढक नहीं बनना है बस, फ्रॉग लाइक एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए. हमें एक ऐसा पर्सन बनना है जिसके पास लेजर लाइक फोकस हो. यही करूंगा, 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 और जब तक करूंगा कि जब तक कुछ बना के नहीं रख दूंगा. और ऐसे ही इसी कैटेगरी के लोग, द पीपल हु कम इन टू दिस कैटेगरी, दे आर द पीपल हु डू समथिंग गुड. Right? They are the people who build something. They are the people who develop something. And they are the people जिनके एग्जाम्पल, जिनकी स्टोरी दुनिया लोगों को बताती है. दुनिया लोगों को बताती है. ट्राई करने वाले लोगों, जिन्होंने 50 चीजें ट्राई करी हैं, उनकी कहानी नहीं बताई जाती है. जिन्होंने एक चीज को मास्टर किया, उनकी कहानी बताई जाती है. आज ब्रूस ली का नाम आप लेते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? मार्शल आर्ट. आज अमिताभ बच्चन का दिमाग लेते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? एक्टर. आज महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? क्रिकेटर. राइट? आज लता मंगेशकर का आप नाम लेते हो, दिमाग में क्या आता है? सिंगर. आपका कोई नाम लेगा तो, आपका जब नाम लिया जाएगा तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा? यू हैव टू डिसाइड दैट वन थिंग. व्हेन पीपल विल टेक योर नेम, व्हाट विल वन थिंग दैट विल कम इनटू माइंड ऑफ एवरीवन? करेक्ट? राइट? तो मेढक नहीं बनना है, अदरवाइज बरसात के मौसम में बहुत आवाज आएगी, फिर हम गायब हो जाएंगे. राइट? सो वी नीड टू हैव एम्बिशन, एंड अलॉन्ग विद एम्बिशन वी नीड टू हैव व्हाट? एम्बिशन विद लेजर लाइक फोकस. और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है. एक चीज डिसाइड करो, ये करना है, 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 और यही करना है, और यही करना है. और इसी एटीट्यूड के लोग आगे निकल कर आते हैं. इसी एटीट्यूड के लोग आगे निकल कर आते हैं. आप कितनी किताबें पढ़ लो, कितने कामयाब लोगों को पढ़ लो, आपको ये एट्रीब्यूट, लेजर लाइक फोकस आपको हर जगह मिलेगा. राइट? जिनके पास लेजर लाइक फोकस था. और एक मेरा सजेशन और है कि आप उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहो. राइट? लाइक व्हेन यू कम इनटू बिजनेस, डेफिनेटली यू नीड अ मेंटोर. सो बी इन द मेंटोरशिप ऑफ दोज पीपल, बी इन द मेंटोरशिप ऑफ दोज पीपल हु आर हैविंग एम्बिशन and who are having laser like focus. Right? Because if you are working in the mentorship of those people who are having ambition and who are having laser like focus, automatically that thing will get duplicated out into you. Right?
याद रखो, करना है, यही 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 कर रहा है, यही करना है, यही करना है, जब तक करेंगे कि जब तक इस पर्टिकुलर काम और हमारा नाम एक ना बन जाए। आज अमिताभ बच्चन और एक्टिंग एक बन चुके हैं, आज धोनी और क्रिकेट एक बन चुके हैं, ब्रूसली और मार्शल आर्ट एक बन चुके हैं। आप मार्शल आर्ट बोलो, ब्रूसली बोलो, एक ही बात है। अमिताभ बच्चन बोलो, एक्टिंग बोलो, एक ही बात है। आप महेंद्र सिंह धोनी बोलो, क्रिकेट बोलो, एक ही बात है। कुछ ऐसा करके दिखाओ, करेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग और आपका नाम एक ही बात है। आपका नाम लिया जाए या डायरेक्ट सेलिंग बोला जाए, एक ही बात है। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आपको एंबिशन तो अपने अंदर रखना है, लेकिन एंबिशन के साथ यू हैव टू कीप दैट लेजर लाइक फोकस। यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे और करते रहेंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं। मैंने 3 टॉपिक की बातचीत करी थी, पहला टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा। अब मैं आपको दूसरे टॉपिक की बात बताता हूं। आपको आपका बिजनेस और आप दोनों सीबकथॉर्न की तरह आपको बनना है, करेक्ट। यू एंड योर बिजनेस हैव टू बिकम लाइक सीबकथॉर्न। अब सीबकथॉर्न की सबसे खास बात क्या है कि सीबकथॉर्न की रूट्स, सीबकथॉर्न की हाइट कितनी भी हो, लेकिन रूट्स बड़ी जबरदस्त हैं। हम सबको पता है सीबकथॉर्न की रूट्स जमीन में 200 फीट तक जाती हैं। इसीलिए सीबकथॉर्न की फ्रूट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन है, करेक्ट। इक्लिप्टस का जो ट्री होता है बड़ा लंबा जाता है, बड़ा लंबा, एकदम हाइट बढ़ती है उसकी, लेकिन मरता भी बहुत जल्दी है। पूछो क्यों? क्योंकि रूट्स ही डेवलप नहीं होती, करेक्ट। सीबकथॉर्न का फ्रूट लो, उसकी लीफ में भी न्यूट्रिशन है, उसके बेरी में भी न्यूट्रिशन है, उसके कांटों में भी न्यूट्रिशन है, उसके फ्रूट, उसकी बेरी, उसकी सीड में भी न्यूट्रिशन, सब में न्यूट्रिशन है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि सीबकथॉर्न की रूट्स बहुत अंदर तक जाती हैं। सीबकथॉर्न हैज गॉट डीप रूट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जमीन के अंदर तक, 200 फीट तक, बिल्कुल अंदर तक, राइट। आपको भी अगर एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप करना है तो आपकी रूट्स भी, आपकी बिजनेस की जो रूट्स हैं वो भी बहुत अंदर तक जानी चाहिए, करेक्ट। आपके बिजनेस की रूट्स, और आपके बिजनेस की रूट क्या है? 2 लेवल है। जब आप अकेले हैं तो आपकी रूट से मैं क्या मतलब है, जब आप अकेले हैं तो आपकी रूट्स हैं आपकी एबिलिटीज, आपका प्रेजेंटेशन, आपका इन्विटेशन, आपका ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका, आपका फॉलो अप करने का तरीका, ये है आपकी रूट्स। एक होता है प्रेजेंटेशन दिखाना और एक होता है खतरनाक प्रेजेंटेशन दिखाना। एक होता है फॉलो अप करना और एक होता है खतरनाक फॉलो अप करना। एक होता है ऑब्जेक्शंस हैंडल करना और एक होता है खतरनाक तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करना। प्रेजेंटेशन दुनिया करती है। आपको अगर करना है ना, आपको अपनी प्रेजेंटेशन को, शुरुआती समय में आपकी प्रेजेंटेशन हो, लेकिन समय के साथ आपकी प्रेजेंटेशन खतरनाक प्रेजेंटेशन बननी चाहिए। खतरनाक प्रेजेंटेशन का मतलब मेक योर प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस। आप अपनी प्रेजेंटेशन की छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान, पहले तो सीखो और फिर छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दो। मैं हमेशा बोलता हूं डॉक्टर की तरह शुरू करो और सर्जन की तरह बनो। डॉक्टर क्या करता है? पहले बीमारी को समझता है, दवाई देना आ जाता है। और सर्जन क्या करता है? सर्जन वो होता है जिसको सारी चीजें कनेक्ट, एक नस से नस जोड़ना आ जाए, वो सर्जन है, राइट। आपको पहले प्रेजेंटर बनना है, लेकिन फिर प्रेजेंटर पे रुकना नहीं है, बेस्ट प्रेजेंटर बनना है। आपकी प्रेजेंटेशन में डेप्थ होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन सीबकथॉर्न की जड़ों की तरह होनी चाहिए। 200 फीट अंदर तक प्रेजेंटेशन में एक एक लाइन आपकी नपी तुली है। पहले तो रूट्स हो, फिर डीप रूट्स हो। पहले तो प्रेजेंटेशन देना है और फिर खतरनाक तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, जहां पे आप एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रख रहे हो। पहले तो आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप करना मतलब रूट्स, और डीप रूट्स मतलब जब आपके फॉलोअप में एक एसेंस है, आपके एक खतरनाक आपका फॉलोअप है, आपकी लॉजिक्स एकदम शार्प है, राइट। ये इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। अब टीम के लेवल पे क्या है? आपकी टीम की ट्रेनिंग। एक बात आप सिंपल से याद रखिए, यू हैव गॉट अ टीम, यू हैव गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल टीम, राइट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं। व्हेन यू आर वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट मैटर हाउ मच यू नो, व्हाट मैटर इज हाउ मच योर ऑर्गेनाइजेशन नो। आपको बेस्ट प्रेजेंटर करना आता है एंड यू हैव गॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, बट इन योर ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर नॉट एबल टू शो द बेस्ट प्रेजेंटर। नाउ योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू ग्रो, क्योंकि अभी आपकी जड़ें मजबूत नहीं है। आपकी जड़ें अभी सीबकथॉर्न वाली जड़ें नहीं हुई हैं। आपकी जड़ें अभी 200 फीट तक नहीं गई हैं। आपकी जड़ें 200 फीट तक कब जाएंगी? आपकी जड़ें 200 फीट तक तब जाएंगी जब आपकी टीम की जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, आपकी टीममेट्स को जबरदस्त प्रेजेंटेशन देना आ रहा है, आपके टीममेट्स को जबरदस्त फॉलोअप करना आ रहा है, आपके टीममेट्स को जबरदस्त तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ रहा है, राइट। आपके टीममेट्स को खतरनाक तरीके से काम करना आ रहा है। लेकिन ये क्या है?
ये इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको बैठ के अपनी टीम से मॉक लेना होगा, आपको अपनी टीम से प्रेजेंटेशन सुनना होगा, आपको अपनी टीम से फॉलो अप सुनना होगा, आपको अपनी टीम से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सुनने होंगे, आपको मॉक करना होगा। और ये अक्सर ये काम बोरिंग होता है, लोग इसको करना पसंद नहीं करते। लेकिन याद रखो, क्योंकि लोगों को सेल दिखता है। सर मैंने प्रेजेंटेशन करा, कन्वर्जन्स हुए, सर मैंने प्रेजेंटेशन करा, टर्नओवर आई, सेल्स आई, टर्नओवर आया, सेल्स आया। लेकिन हमेशा याद रखो, जड़ों की ग्रोथ किसी को दिखती नहीं है, लेकिन पेड़ जड़ों की दम पर ही खड़ा होता है, राइट? एक ग्रोथ ऑफ रूट्स आर नॉट सीन बाय एनीवन, बट अ प्लांट और अ ट्री बिकम अ बिग ट्री बिकॉज ऑफ रूट्स. When you are taking mock, you are teaching your presentation, maybe turnover is not coming because of that, maybe sales are not coming of that, but you are growing your roots, and when your roots are strong, your tree will grow like anything. So when your team is strong, your organization will grow like anything, right? Grow your roots. Understand, your business should be like सीबकथॉर्न. आपका बिजनेस किसकी तरह होना चाहिए? सीबकथॉर्न. आपके लीडर सीबकथॉर्न बेरी की तरह बनेंगे, लेकिन कब? जब आप अपने बिजनेस की रूट्स को 200 फीट तक अंदर लेके जाओगे. आप अपने बिजनेस की फील्ड को 200 फीट तक अंदर लेके जाओगे. और मैं आपको बता रहा हूं, टुडे आई एम हियर इन दिस इंस्टा लाइव एट 9 PM, बट टुडे मॉर्निंग, लाइक आज पूरे दिन भर में, आई हैव टेकन मॉक फ्रॉम माई टीम. आई हैव सेट डाउन विद 4 पीपल. मैं 4 लोगों के साथ बैठा हूं और मैंने उनकी प्रेजेंटेशन को सुना है, एंड आई मेड नोट्स कि वो कहां इंप्रूव कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड रूट. इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, बातों से नहीं. आई हैव गॉट कार, आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट ड्रामा, आई हैव गॉट दिस, आई हैव गॉट दैट, आई हैव गॉट कंपनसेशन प्लान, आई हैव गॉट प्रोडक्ट्स, आई हैव गॉट दिस प्रोडक्ट, आई हैव गॉट दैट. इससे नहीं बढ़ेगा बिजनेस. When your roots will grow. And how your roots will grow? As an individual, when you will make your presenter, when you will make yourself presenter, then best presenter. When you will make yourself follow-up taker, then best follow-up taker. When you will make yourself objection handler, and the best objection handler. Are you getting my point? Best objection handler. And when you will make yourself right, and after that, when you will make your team presenter, best presenter. Objection handler, best objection handler. Follow-up taker, best follow-up taker. And when you will become best and your team will become best, that means your roots are growing deep. और जड़ें बढ़ेंगी, right? पत्तियों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेरी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको पता भी नहीं चलेगा पत्ते कब बढ़ रहे हैं, बेरी कब बढ़ रही है, डाली कब बढ़ रही है. और कुछ लोग तो आजकल डाली तोड़ने में लगे थे. इसकी डाली तोड़ेंगे, उसकी डाली तोड़ेंगे, इसकी डाली तोड़ेंगे, और खुद की रूट्स ही नहीं है, राइट? दूसरों की डालियां तोड़ के क्रिसमस ट्री बनता है, एक्चुअल ट्री नहीं बनता है. एक्चुअल ट्री रूट से बनता है, और जड़ों को मजबूत करना पड़ता है, राइट? तो आपका बिजनेस सेकंड लर्निंग जो मैं देना चाहता हूं, आपका बिजनेस किसकी तरह होना चाहिए? योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुड बी लाइक सीबकथॉर्न. शुड बी लाइक सीबकथॉर्न. बेस्ट एग्जांपल इज, इट शुड बी लाइक सीबकथॉर्न. एकदम सीबकथॉर्न की तरह. डीप रूट्स, इतनी अंदर तक जड़े हैं, राइट? इतनी अंदर तक जड़े हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यूट्रिशन तो आना तय है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यूट्रिशन तो आना तय है, राइट? आना तय है. और जब आप मजबूत बनते हो, सी इफ यू विल रन बिहाइंड मनी, अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, मुझे नहीं पता, लाइक आई हैव नॉट सीन पीपल इन एनी इंडस्ट्री हु हैव ग्रोन व्हेन दे वर फोकसिंग ऑन एबिलिटीज. जब वो एबिलिटीज एंड एक्शंस, then when they were focusing on abilities and action, abilities, actions, abilities, actions, abilities, actions, and when they were focusing on abilities and actions, when they were focusing on abilities and actions of them, and abilities and action of their organization, correct? Abilities and actions of them, and abilities and actions of their organization. What happened because of that? Automatically their organization grew, right? Automatically their organization grew, and that is what you have to do. Correct? So the second learning I want to give you out is that your business should be like सीबकथॉर्न ट्री. रूट्स कहां तक जानी चाहिए? 200 फीट. अगर आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, सिट विद योर अपलाइन एंड टेल, सर टीच मी प्रेजेंटेशन, आई विल डू ऑन माई ओन. सर टीच मी प्रेजेंटेशन. इफ यू डोंट नो हाउ टू डू फॉलो अप, sit with your mentors and say, sir, teach me how to do follow up. If you don't know how to handle objection, sit with your mentor and tell, sir, teach me how to do
how to handle objection. If you know presentation, just listen your own presentation. Give your the best part of Zoom is you can give yourself presentation very easily, right? You can give presentation very easily, correct? आप बहुत आसानी से अपने आप को presentation दिखा सकते हो. So if you know presentation, start like targeting the best presentation. कि best presentation मेरे को कैसे करना है, छोटी छोटी बातों पे फिर देखना शुरू करो. And when you do that thing, right, आप देखो, just focus on the process and result will follow. Process को follow करो, result अपने आप आएगा. If you're focusing on result, nothing will come. Focus on the process. As an individual, as a team leader, just focus on the process, right? And make your roots like sea buckthorn tree. Point number 2. Point number 3, जो मैं आज का जो point number 3 मैं आपको बताना चाहता हूं. देखो, business क्या है? I always love giving this example, and I've heard it from many places, and I love this example. See, business is like learning how to ride a bicycle. Business एक साइकिल सीखने के जैसा है. मान लो, like I was hearing out one video of one very great leader, and from that video I got to know about this lesson, right? I got some words to express it, and right, and I'm able to express over here. मान लो कि आप साइकिल सीखना चाहते हो, आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, ठीक है? और I have called the best trainers. मैंने बेस्ट ट्रेनर्स को बुलाया, right? I have called the best trainers out there, right? I have called the best trainers, best trainers, like who know how to train you in riding a cycle in the best way. And then I have got the best bicycler for you also, जो best bicycle चलाने वाला राइडर है, let's say Lance Armstrong. बेस्ट ट्रेनर आ गए, राइट? बेस्ट साइकिलिस्ट आ गए, दैट इज लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग. और आप भी आ गए. अब आपको साइकिल चलाना सीखना है, और आप आए और आपको साइकिल चलाना सीखना है. होगा क्या? भले ही बेस्ट ट्रेनर अवेलेबल है, भले ही बेस्ट साइकिलिस्ट अवेलेबल है, लेकिन होगा क्या? व्हेन यू विल राइड साइकिल, यू विल फेल डाउन. आप साइकिल चलाओगे, आप गिरोगे. भले ही बेस्ट ट्रेनर अवेलेबल है, तब भी गिरोगे. बेस्ट साइकिलिस्ट अवेलेबल है, तब भी गिरोगे. यू नो व्हाई? बिकॉज ट्रेनर, द बेस्ट ट्रेनर एंड बेस्ट साइकिलिस्ट कैन नॉट किल द प्रोसेस. साइकिल चलाने में गिरना है तो गिरना है. ट्रेनर उस प्रोसेस को किल नहीं कर सकता है. लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग उस प्रोसेस को किल नहीं कर सकता है. गिरना है तो गिरना पड़ेगा, और तभी सीखोगे. And how you learn how to ride a cycle? By seeing Lance Armstrong, maybe you get some tips, right? By listening to best trainer, maybe you get some tips, but you will be able to learn how to ride a cycle. साइकिल पे बैठो, गिरो, फिर तुम्हारा साइकिल उठाओ, फिर बैठो, फिर गिरो, फिर थोड़ी देर चलाओ, फिर साइकिल पे बैठो, फिर गिरो, फिर थोड़ी देर चलाओ. And you know what will happen after some time? When you will learn how to ride a cycle? When the balance comes. और जब बैलेंस साइकिल में आना शुरू हो गया,